प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला मेरे चैनल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਜੋ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੋਪ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਆਲ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਨ ਸੋਲਡ, ਉਹ ਮੈਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਥ ਅਤੇ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਇੰਸ, SS, ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈ ਮੰਥਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੰਥਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਆਲ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਭਾਗ ਕੱਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 80 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਲਿਖਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 75 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ 5 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 80 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜੋ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ 20 ਨੰਬਰ ਦੀ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। पहला है जी अपने को निम्नलिखित बहुविकल्प प्रश्नों के सही विकल्प को चुनिए। जो शब्द लिखा है परोपकार, परोपकार शब्द का संधि विच्छेदन सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए हुई हैं जी। जो परोपकार है वो किहड़े 2 शब्दों तो मिल के बनता है, तो वो ऑप्शन अपने को है जी घ ऑप्शन, पर प्लस उपकार। अगला है जी कुशल, कार्य कुशल समस्त पद का सही समास विग्रह चुनिए। तो कार्य कुशल का मतलब होता है कार्य में कुशल, ग ऑप्शन अपने को आ जाएगी जी। अगला है जी हिंदू शब्द का सही भाववाचक संज्ञा चुनिए। तो हिंदू का सही जो भाववाचक संज्ञा है वो आ जाएगा ख ऑप्शन हिंदुत्व। नेक्स्ट है जी अपने को निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो कमल का जो पर्यायवाची शब्द है वो जी है जी अपने को नीरज। अगला है जी निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों में से सही विकल्प को चुनिए। पदावली पाठ के अनुसार मीरा किसे अपने नैनों में बसाना चाहती है। तो वो है जी क ऑप्शन श्री कृष्ण को। अगला है जी नीति के दोहे पाठ के अनुसार रहीम जी के अनुसार सच्चे मित्र की क्या पहचान है। तो इस दे विच आ जाएगा जी जो विपत्ति में अपने मित्र के काम आए। विपत्ति मतलब संकट, जो संकट में अपने मित्र के काम आए वो सच्चे मित्र की पहचान है। अगला है जी ममता कहानी के अनुसार ममता कौन थी। तो इसका आंसर आ जाएगा जी ग ऑप्शन मंत्री चूड़ामणि की विधवा पुत्री। आओ जी अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अशिक्षित का हृदय कहानी के अनुसार मनोहर सिंह ने रुपए लुटाने की मोहलत कब तक की मांगी थी। तो उसने मांगी थी जी 1 सप्ताह की मोहलत। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। निम्नलिखित पदांश को पढ़कर दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसमें तुसीं पहला ये जो पदांश हैं इसनिया जो लाइन्स हैं उसमें तुसीं पढ़ लेना है जी। तो पढ़ के आप अगले क्वेश्चन के आंसर देखते हैं कि आ सकते अपन जी। पहला है जी कौन से लोग हर बात में दोष निकाल कर व्यर्थ में बहस करते हैं।
तो इसका आंसर आएगा जी बुद्धिमान विद्वान जो व्यक्ति है वो बात में दोष निकालकर हर बात में व्यर्थ में बहस करते हैं। अगला है जी व्यर्थ की बातों को त्याग कर मूल धर्म सहज धर्म को कौन से लोग अपनाते हैं? तो इसका आंसर आएगा जी किसान। अगला है जी तजकर शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब है त्याग कर। अगला है जी अपने को क्वेश्चन इस पदांश का केंद्रीय भाव क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा जी ग ऑप्शन। इसमें किसानों के सहज जीवन की प्रशंसा करते हुए राज्य के लिए व्यर्थ ही लड़ने मरने को वालों के जीवन को व्यर्थ कहा गया है। अगला है जी निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों के बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना, इसका क्या मीनिंग है? इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर आ जाएगा जी क ऑप्शन। अपने को मुंह तोड़ जवाब देना या कठोर के साथ कठोरता का व्यवहार करना। अगला क्वेश्चन अपने को है जी अपना लाल गवाए के दर दर मांगे भीख लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है जी अपनी वस्तु लापरवाही से नष्ट करके दूसरों से मांगते फिरना। ग ऑप्शन अपने को आ जाएगी जी। अधूरा छोड़े सो पड़ा रहे लोकोक्ति का क्या अर्थ है? सही विकल्प चुनिए। अधूरा छोड़े सो पड़ा रहे, इसका मतलब है जो कार्य बीच में छोड़ दिया जाता है वह प्राय अधूरा ही रह जाता है जी। तो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है जी निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ के दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला तुसीं इस स्क्रीनशॉट लैके तो इसनूं पढ़ लेना है, फिर आपां एक एक करके इसके जो 5 क्वेश्चन आपां नूं पूछे गए हैं उन्होंने आंसर देखते हैं जी। एक ऑप्शन क ख ग घ ते ड़, ये 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आ इन्हां दे आपां एक एक करके आंसर देखते हैं जी। तो इसमें देखो इन्हां दे की आंसर हो सकते हैं जी। 5 क्वेश्चन अपने को पूछे गए हैं, तो आओ इन्हां 5 दे आपां आंसर देखते हैं जी नीचे। पहला है जी अपने को दुनिया की समस्त संपत्तियों में से किसे श्रेष्ठ माना गया है? तो इसका आंसर है जी सचरित्र को दुनिया की समस्त संपत्तियों में से श्रेष्ठ माना गया है। ये आप पूरा पैराग्राफ के विचों ही सारे आंसर लभ के लिखने हैं जी। रावण को क्यों अपयश का सामना करना पड़ा? रावण को सीता जी के हरण के कारण अपयश का सामना करना पड़ा। चरित्रहीन व्यक्ति सदैव किससे वंचित रहता है? चरित्रहीन व्यक्ति सदैव आत्म शांति, आत्म सम्मान और आत्म संतोष से वंचित रहता है जी। अगला है जी श्रेष्ठ शब्द के अर्थ लिखिए। श्रेष्ठ शब्द का मतलब होता है सबसे बढ़िया या सबसे अच्छा। अगला है जी उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो वो होगा श्रेष्ठ संपत्ति सचरित्रता। तो आ हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो जी अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 6 है निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। सप्ताह शब्द का विशेषण जो है वो साप्ताहिक होता है। इस कथन को सही होने पर सही और गलत होने पर गलत के उत्तर दीजिए। तो सप्ताह का जो विशेषण है वो साप्ताहिक है, बिल्कुल सही है, तो आप सही तो टिक कर देना है जी। अगला है जी समरूपी भिन्नार्थक शब्द। तो रूप सम सेम है बट जो उसका आंसर है उसका जो अर्थ है वो अलग अलग है। समरूपी भिन्नार्थक शब्द दिन और दीन में दिन का अर्थ दिवस है और दीन का अर्थ गरीब होता है। इस कथन में सही होने पर सही और गलत होने पर गलत का उत्तर दीजिए। तो बिल्कुल सही है जी। दिन का अर्थ होता है दिवस और दीन का अर्थ होता है गरीब। तो ये अपने को सही है, इसलिए अपन सही तो टिक कर देना है जी। अगला है जी उपकार को ना मानने वाला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का क्या होगा? इसमें लिखा है कृतज्ञ। कृतज्ञ लिखा है उपकार को ना मानने वाला, बट जो कृतज्ञ होता है वो होता है जो उपकार को मानता है। इट मीन ये अपने को जो कथन लिखा होया है एक ही है जी एक गलत कथन है। तो इसका जो सही आंसर होएगा जी उपकार को ना मानने वाला वो होता है कृतघ्न। इस तरह आ जाएगा इसका जी
कृतघन। कृतघन की हुंदा है जो उपकार को नाम वाले वाला। इत्थे लिखा है कृतज्ञ। जो कृतज्ञ होता है वो उपकार को मानने वाला होता है, इसलिए इत्थे अपने को गलत ऑप्शन आएगी जी, गलत आंसर आएगा जी। तो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट अपने को है जी स्वाधीन शब्द का विलोम, जो विपरीत शब्द क्या होगा, इसको रिक्त स्थान भरना है तो वो होगा प्राधीन। तो इत्थे अपने को आ जाएगा जी प्राधीन। प्राधीन की आएगा स्वाधीन का विलोम या विपरीत शब्द। तो आओ नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी अपने को, निम्नलिखित विकल्पों में से कुल शब्द के अनेकार्थक शब्द का सही विकल्प के साथ रेखा खींचकर मिलान कीजिए। कुल, कुल का मतलब क्या होता है, वंश या सारा, इसके साथ मैचिंग हो जाएगी जी। आगे है जी दूध में कौन गिर गया, इस वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। तो इस दे विच आएगा दूध में कौन गिर गया की जगह कौन जो लिखा है, कौन की जगह हमने लिख देना है क्या। दूध में क्या गिर गया, बाकी सारा कुछ सेम आएगा, कौन की जगह अपने पास आ जाएगा क्या। दूध में क्या गिर गया। तो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7 है, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। तो अपने को देखो 4 क्वेश्चन हैं, ये 4 क्वेश्चन के आप आंसर देने हैं जी। तो आओ एक एक करके इन्हों के आंसर देखते हैं, उस तो बाद अपने को भाग खा स्टार्ट करते हैं आप भाग ख। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन अपने पास है जी निर्बल पुरुष किस प्रकार का साथ ढूंढते हैं, मित्रता निबंध के आधार पर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। निर्बल व्यक्ति आत्मबल रखने वाले व्यक्ति का साथ ढूंढता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, किस तेजस्वी पुरुष के अनुभव ने लेखक को हिला दिया, मैं और मेरा देश निबंध के आधार पर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। स्वर्गीय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की विदेश यात्रा के दौरान भारतवर्ष की गुलामी की लज्जा के कलंक के अनुभव ने लेखक को हिला दिया। अगला क्वेश्चन है जी सूखी डाली एकांकी में दादा मूलराज के बड़े पुत्र की मृत्यु सन 1913 में महायुद्ध के में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते हुई। इस कथन के सही और गलत होने पर गलत में उत्तर दीजिए। तो इसमें अपने को कथन जो है वो गलत है जी। तो अगला देखते हैं जी, देश के दुश्मन एकांगी में जयदेव को स्वागत सभा में ₹100 इनाम में देने के लिए सोचा गया है, सही उत्तर देकर रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें आंसर आ जाएगा जी 10,000। तो इसका आंसर अपने को आ जाएगा जी, इस रिक्त स्थान पे आ जाएगा 10,000। तो आओ आप नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट अपने को जो ख भाग है, ख भाग के क्वेश्चन देखते हैं जी। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में दीजिए। तो टोटल अपने को 5 क्वेश्चन हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ मैं 5 ਦੇ 5 ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸਹੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। पहला जी अपने को मरी हुई भिखारन और उसके दोनों बच्चों को उसके सूखे शरीर से चिपक कर रोते हुए देखकर चित्रा ने क्या किया। 2 कलाकार कहानी के आधार पर उत्तर दीजिए। तो देखो मरी हुई भिखारन और उसके दोनों बच्चों को उसके सूखे शरीर से चिपक कर रोते हुए देख चित्रा का हृदय करुणा से भर गया। वह चाहकर भी स्वयं को वहाँ से दूर नहीं कर पाई। वह वहीं रुकी और उस दृश्य को देखकर उसने उसका चित्र कागज़ पर उतारा।
वह उसके अंदर का कलाकार था जो चित्र के रूप में उभर कर सामने आया। तो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। मंदिर में लाए शिलालेख पर क्या लिखा गया? ममता कहानी के आधार पर उत्तर दीजिए। अकबर द्वारा कुछ दिनों के बाद ही उस स्थान पर एक अष्टकोण मंदिर तैयार करवाया गया। उस मंदिर में लगवाए शिलालेख पर लिखा था, 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र ने उसकी स्मृति में ये गगनचुंबी मंदिर बनवाया। शिलालेख पर इतना सब कुछ लिखा था, किंतु हुमायूं को आश्रय देने वाली ममता का कहीं भी नाम नहीं था। अगला है जी, विश्वास पात्र मित्र को खजाना, औषध और माता जैसे क्यों कहा गया है? मित्रता पाठ के आधार पर उत्तर दें। लेखक ने विश्वास पात्र मित्र को खजाना इसलिए कहा है क्योंकि जैसे खजाना मिलने से सभी प्रकार की कमियां दूर हो जाती हैं, उसी प्रकार से विश्वास पात्र मित्र मिलने से भी सभी कमियां दूर हो जाती हैं। वह एक औषधि के समान हमारी बुराइयां रूपी बीमारी को ठीक कर देता है। वह माता के समान धैर्य और कोमलता से स्नेह देता है। श्री गुरु नानक देव जी निबंध के आधार पर गुरु नानक देव जी की रचनाओं के नाम लिखिए। गुरु नानक देव जी की रचनाएं जपू जी, आशा की बार, सिंध गोष्ठी, पट्टी, दक्षिणी ओंकार, परे तिथि, 12 माह, सुचज्जी कुचज्जी, आरती आदि है। गुरु जी ने इन रचनाओं के अतिरिक्त वाणी, श्लोक, पद, अपसृष्टि, 16 छंद आदि के रूप में विद्यमान है जी। तो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। जयदेव ने अपनी छुट्टी कैंसिल क्यों कर दी थी? देश के दुश्मन पाठ के आधार पर उत्तर दें। जयदेव ने अपनी छुट्टी कैंसिल इसलिए करा दी थी क्योंकि उसे उधर आने से 2-3 घंटे पहले गुप्तचरों से समाचार दिया था कि रात की अंधेरी में पुलिस पिकेट के 1.5 मील दक्षिण की तरफ से कुछ लोग सोना स्मगल कर बॉर्डर पार करने वाले हैं। ये एक मौका था जिसे वह हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। तो और नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को इस तरह है जी। निम्नलिखित प्रश्नों के में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 6 ਜਾਂ 7 पंक्तियों में दीजिए। तो इस इत्थे भी अपने को टोटल 5 क्वेश्चन हैं। 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 3 ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 5 ਦੇ 5 ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਣਗੇ ਤੁਸੀਂ पेपर ਵਿੱਚ कर सकते हो जी। अगला है जी, अशिक्षित का हृदय कहानी के आधार पर तेजा सिंह का चित्रण कीजिए। तेजा सिंह 15-16 वर्ष का बालक था। वह संपन्न परिवार से संबंध था। वह साहसी और समझदार था। वह मनोहर सिंह को चाचा कहकर पुकारता था। जब मनोहर सिंह ने उसे बताया कि वह नीम का पेड़ उसके पिता ने लगाया था तो वह इसे भाई की तरह प्यार करता था। इसे किसी हालत में कटने नहीं देगा तो तेजा बड़ा प्रभावित हुआ। उसने पेड़ की रक्षा के लिए उसने घर से 25 रुपये चुरा कर लगाया था। भेद खुलने पर वह हाथ की अंगूठी जो उसकी नानी ने दी थी देकर पेड़ को काटने से बचा लिया था और तेजा सिंह ने अपने साहस से अपने पिताजी को ही नहीं सभी उपस्थित लोगों को भी प्रभावित कर दिया था। उसके इसी साहस से प्रभावित होकर मनोहर सिंह सबके सामने ये घोषणा करता था कि उस नीम के पेड़ पर तेजा का अधिकार होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। ममता कहानी में से आपको क्या शिक्षा मिलती है? ममता कहानी एक ऐतिहासिक कहानी है। इस कहानी के द्वारा लेखक ने नारी के आदर्श, कर्तव्य पालन, त्याग, तपस्वी जीवन जीने जैसे गुणों को अपनाने की शिक्षा दी है। उसके अनुसार इतिहास बनाने में केवल राजाओं का हाथ ही नहीं है बल्कि इस आम आदमी का भी हाथ होता है। अंत हमें सभी कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए।
अतिथि देवो भव की भावना सदैव अपने मन में रखनी चाहिए। आगे देखते हैं जी। कहानी में ममता के संवादों से लेखक ने रिश्वत लेने तथा देश से गद्दारी को सर्वथा अनुचित बताया था। अंत कहानी हमें एक आदर्श व्यक्ति, देशभक्त, आश्रयदाता, समाज सेवक, मुद्भाषी आदि बनने की शिक्षा देती है। व्यक्ति की ममत्व की भावना तथा उससे निहित उपकार भावना के भी दर्शन होते हैं। तो ऑप्शन नेक्स्ट देखते हैं जी। तो अगला क्वेश्चन है जी, जिस समय गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था उस समय भारतीय समाज की क्या स्थिति थी? श्री गुरु नानक देव जी निबंध के आधार पर उत्तर दीजिए। जिस समय गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था उस समय भारतीय समाज अनेक बुराइयों में ग्रस्त था। वह अनेक जातियों, संप्रदायों और धर्मों में बटा हुआ था। लोग रूढ़ियों में फंसे हुए थे। उनके विचार बहुत ही सक्रिय थे। वह घृणा करके योग्य कार्यों में लगे रहते थे। धर्म के नाम पर दिखावे का बोलबाला था। शासक वर्ग अत्याचारी था। आम जनता का अत्यधिक शोषण होता था। दलितों पर बहुत अत्याचार होते थे। तो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट है जी, राजेंद्र बाबू पाठ के आधार पर राजेंद्र बाबू की शारीरिक बनावट, वेशभूषा और स्वभाव का वर्णन करें। राजेंद्र बाबू के हाथ, पैर, शरीर सब में लंबाई की विशेषता थी। उनके काले घने छोटे कटे हुए बाल, चौहा मुख, चौड़ा माथा, घनी भौहें, बड़ी बड़ी आँखें, कुछ भारी नाक, गोलाई लिए चौड़ी ठुड्डी, कुछ मोटे और सुडौल होंठ, गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी मूछें थी। वह खादी की मोटी धोती कुर्ता, काला बंद गले का कोट, गांधी टोपी, साधारण मोजे और जूते पहनते थे। उनका स्वभाव अत्यंत शांत था। वह सदा सादगी पसंद करते थे। अपने स्वभाव तथा रहन सहन में वह एक सामान्य भारतीय अथवा किसान के समान थे। उनका खान पान अत्यंत ही साधारण था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। सूखी डाली एकांगी में हमें क्या शिक्षा मिलती है? सूखी डाली पाठ के आधार पर उत्तर दें। तो आंसर है जी, सूखी डाली एकांगी में हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें परिवार के सभी सदस्यों का जो समान भाव किसी के साथ आदर सम्मान करते हुए प्रेम एवं श्रद्धापूर्वक मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें अपने बुजुर्गों, माता पिता का आदर करना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए तथा उनके द्वारा बताए गए सुझावों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। अपने को सुशिक्षित एवं सुकृत मानकर घमंड में चूर नहीं रहना चाहिए, अन्यथा घमंड में रहकर आदमी परिवार के साथ रहकर भी पेड़ पर लगी सूखी डाली के समान जड़ बनकर रह जाता है। छोटा बड़ा कोई उम्र से नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धि से होता है। महानता मनवाने से नहीं बल्कि व्यवहार से होती है। तो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। तो अगला क्वेश्चन देखो जी, निम्नलिखित पंजाबी गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो देखो पंजाबी विच लिखा होया है, ਭਾਰਤ ਦੇ उत्तर प्रदेश के आगरा शहर ਵਿੱਚ स्थित ताज महल एक खूबसूरत मकबरा है। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮਹਿਲ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਵਾਸਤੂਕਲਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਮਕਬਰਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਗੁਲਾਬੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁਧੀਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਝਲਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਧੂਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ अनुवाद करना है। भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित ताजमहल एक खूबसूरत मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में करवाया था। यह अपनी सुंदरता और उत्कृष्ट वास्तुकला के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये अदरणीय मकबरा सुबह लाल गुलाबी, शाम को दुधिया और रात को सुनहरी झलक देता है। इसे देखे बिना भारत की यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं जी।
तो इस नैक्सट देखो जी, अपने को क्वेश्चन नंबर 5 है जी। तो इस आप एक विज्ञापन लिखना है। देखो जी, आपका नाम हरीराम है, आपकी सेक्टर 14 यमुना नगर में एक 10 मरले की कोठी है, आप अपने उसे बेचना चाहते हैं और आपका मोबाइल नंबर ये है जिस पर कोठी खरीदने के इच्छुक आप संपर्क कर सकें। वर्गीकृत विज्ञापन में अंतर्गत कोठी बिकाऊ है का प्रारूप तैयार करके लिखिए। तो इस आप देखो लिखना है पहला उत्तर कोठी बिकाऊ। सेक्टर 14 अर्बन स्टेट यमुना नगर में एक 10 मरले की कोठी बिकाऊ है, मार्बल फ्लोर, आधुनिक फिटिंग, 4 कमरे, 2 बाथरूम, एक किचन, आधुनिक सुविधाओं से युक्त है, संपर्क करें हरीराम, मोबाइल नंबर दिस। तो आओ अगला देखते हैं जी। इसका ही अगला अपने को अथवा वाला पार्ट है। आपका नाम प्रजय कुमार है, आप संकल्प पब्लिक स्कूल पटियाला के डायरेक्टर हैं, आपके स्कूल में दिनांक 7 सितंबर 2023 को विज्ञान प्रदर्शनी लग रही है, आप अपनी ओर से एक सूचना तैयार कीजिए जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों को इसमें भाग लेने के लिए कहा गया हो। तो देखो जी, पर लिखना है विज्ञान प्रदर्शनी। आप सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आपके विद्यालय में दिनांक 7 सितंबर, यहाँ पे डेट लिख देनी है, को एक विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। जो भी विद्यार्थी इस प्रदर्शनी में भाग लेना चाहता है वह अपना नाम कक्षा अध्यापक को 20 अगस्त से पहले दे दे। विद्यालय में सभी विद्यार्थियों के से आग्रह है कि वह प्रदर्शनी में भाग लें। प्रंजय कुमार, डायरेक्टर, संकल्प पब्लिक स्कूल पटियाला। तो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। तो इसमें नेक्स्ट अपने को है जी, एक स्कूल के मुख्य अध्यापक को आवेदन करना है, पत्र लिखना है। तो देखो अपने को है, आपका नाम मोनिका मोंगा है, आप बाल निकेतन पब्लिक स्कूल हरिद्वार में 10वीं कक्षा में पढ़ती हैं, आपका रोल नंबर 4 है। अपने स्कूल के मुख्य अध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें बड़ी बहन के विवाह के में शामिल होने के लिए 4 दिन का अवकाश मांगा हो, 4 दिन की छुट्टी मांगी हो। तो क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है जी, अपने स्कूल के मुख्य अध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें बड़ी बहन के विवाह के लिए 4 दिन का अवकाश मांगा गया हो। तो देखो जी, सेवा में मुख्य अध्यापक बाल निकेतन पब्लिक स्कूल हरिद्वार, विषय है अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। मान्यवर महोदय, निवेदन है कि मेरी बड़ी बहन की शादी, इसे डेट लिख देनी है जी, को दिल्ली में होनी तय हुई है। हमारे परिवार के सभी सदस्य वहां पहुंच चुके हैं। मैं और मेरी छोटी बहन, डेट लिख देनी है, उसको रात की गाड़ी से दिल्ली जाएंगे। कृपया मुझे दिनांक 10 से 13 नवंबर तक 4 दिन का अवकाश प्रदान कीजिए। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिष्य मोनिका मोंगा, 10वीं क्लास है। यहाँ पे रोल नंबर लिख देना है 4 और जहाँ पे तिथि लिख देनी है जी। रोल नंबर देखो ऊपर दिया हुआ है उसने कि रोल नंबर 4 है। तो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। इससे अपने को और पार्ट है। आपका नाम चंपक लाल है, आप मकान नंबर 45 सुंदर नगर में रहते हैं, आपका मोबाइल नंबर ये है और आपकी ईमेल आईडी champaklal@yahoo.co.in है। आप अपनी ओर से नगर निगम सुंदर नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर और उसमें अपने क्षेत्र मोहल्ले की सफाई कराने की प्रार्थना पत्र लिखिए। तो देखो अपने को मकान नंबर सुंदर नगर थे दिन लिख देना है जी। फिर सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम सुंदर नगर, विषय क्षेत्र की सफाई कराने हेतु प्रार्थना पत्र। तो इस देखो अपन किस तरह लिखना है जी। महोदय, निवेदन है कि मैं सुंदर नगर का एक निवासी हूँ। ये नगर सफाई की दृष्टि से पूरी तरह उपेक्षित है। इसे देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे ये नगर निगम के क्षेत्र से बाहर है। गांव की गंदगी के विषय में तो ये केवल सुना था, लेकिन यहाँ की गंदगी को प्रतिदिन आँखों से देखता हूँ। सफाई कर्मचारी भी नियुक्त तो अवश्य हुए हैं, लेकिन वह कभी कभी ही दिखाई देता है। उसका व्यवहार से अशिष्टता भी है। इधर उधर गंदगी के ढेर लगाकर चला जाता है। नालियों का भी ठीक प्रबंध नहीं है। पानी निचले स्थान पर आकर रुक जाता है। मच्छरों के
जमघट के में नाक में दम कर रखा है, अनेक प्रकार की बीमारियों के फैलने का भी भय बना रहता है। आपसे निवेदन है कि आप एक बार स्वयं इस नरक को आकर देख जाएं, तभी आप हमारी कठिनाई का अनुभव करेंगे। एक बार पहले भी आपकी सेवा में प्रार्थना कर चुके हैं, लगता है कि हमारी बात आप तक पहुंची नहीं है, अन्यथा इस नगर की दशा ऐसी ना होती। कृपया सफाई सेवक को चेतावनी दें ताकि वह अपने काम को ईमानदारी से करे। आशा है कि आप मेरी प्रार्थना पर ध्यान देंगे और सुंदर नगर की सफाई पर उचित प्रबंध करेंगे। बहदीप चंपकलाल मोबाइल नंबर ते इत्थे ईमेल आईडी आ जाएगी जी। तो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला है जी, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में निबंध लिखना है। 3 अपने पास निबंध दिए हुए हैं। मेरे जीवन का लक्ष्य, जनसंचार के माध्यम और विद्यार्थी और अनुशासन। तो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ मैं ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ का लक्ष्य। ਤੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ करना है। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ मैं ਤਿੰਨੇ ही ਕੀਤੇ ਹਨ जी। देखो, संसार में प्रत्येक मनुष्य के जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता है। एक मनुष्य एवं सामाजिक प्राणी होने के नाते मैंने भी अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया है। मैं बड़ा होकर एक आदर्श अध्यापक बनना चाहता हूँ और अध्यापक के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाना चाहता हूँ और अपने राष्ट्र की सेवा करना चाहता हूँ। मैं आदर्श शिक्षक बनकर अपने राष्ट्र की भावी पीढ़ी को बौद्धिक स्तर को उच्च स्तर पर पहुंचाना चाहता हूं, ताकि मेरे देश की युवा पीढ़ी कुशल, विवेकशील, कर्मनिष्ठ बन सके और मेरा देश फिर से शिक्षा का सिरमौर बन सके। फिर से हम विश्व की उपाधि में ग्रहण कर सकें। विद्यार्थियों होने के कारण मैं भली भांति जानता हूं कि किस अध्यापक का विद्यार्थियों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। कोई अच्छा अध्यापक अपने आपको उच्च शिक्षा दे सकता है। मैं भी ऐसा करके देश के युवा वर्ग को कई नई दिशा देना चाहता हूँ। आगे है जी अपने को जनसंचार के माध्यम। वर्तमान युग विज्ञान, औद्योगिकी एवं भूमंडलीकरण का युग है। आज के युग में संचार के क्षेत्र में क्रांति सी आ गई है। आज पहले ही अपेक्षा जनसंचार के आधुनिक एवं अनेक साधन हैं जिनकी हम दूसरों तक अपनी बात को आसानी से पहुंचा सकते हैं। अब तो जनसंचार के लिए मोबाइल फ़ोन हर व्यक्ति की जेब में सदा विराजमान या विद्यमान है, जिससे आप देश विदेश कहीं पे भी बात कर सकते हो, संदेश प्राप्त कर सकते हो या उन्हें कहीं भी भेज सकते हो। इंटरनेट की सुविधा से तो पूरे संसार में एक गांव में बदल दिया है। पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल टेलीफोन, इंटरनेट, ईमेल, फैक्स आदि संचार के विभिन्न माध्यम हैं। जनसंचार के इन माध्यम को हम अनेक वर्गों में बांट सकते हैं, मौखिक और लिखित। ते दृश्य और श्रवण तथा दृश्य एवं श्रवण दोनों ही इस सभी माध्यमों का देश के शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, मनोरंजन आदि क्षेत्रों में अनूठा योगदान है। तो आओ नेक्स्ट देखते हैं जी, विद्यार्थी और अनुशासन। विद्यार्थी और अनुशासन एक दूसरे के पूरक हैं। यूँ कहें कि अनुशासन ही विद्यार्थी का जीवन की नींव है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व है। अनुशासित विद्यार्थी ही सफलता की ऊंचाई को छूने में सफल होता है। जो विद्यार्थी अपने जीवन में अनुशासन को नहीं अपनाता है वह कभी भी सफल नहीं होता, बल्कि अपने जीवन को ही बर्बाद कर लेता है। बिना अनुशासन के विद्यार्थी जीवन कटी पतंग के समान होता है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता है। विद्यार्थी अपने विद्यालय में प्रांगण में रहकर प्रशिक्षित अनुशासन का पालन करता है, अपने शिक्षकों का आदर करता है और इतना ही नहीं, जीवन में हर पल नियमों के अनुसार अनुशासन में बदकर चलता है। वह कदापि निसफल नहीं हो सकता। सफलता उसके कदम अवश्य ही चूमती है। इसलिए विद्यार्थियों को कभी भी अनुशासन भंग नहीं करना चाहिए, बल्कि सदैव अनुशासन का पालन करना चाहिए। एक अनुशासित विद्यार्थी ही राष्ट्र का आदर्श नागरिक बन सकता है और देश के चहुमुखी विकास में अपना योगदान दे सकता है। तो आ हुण आपां अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाग अगला देखते हैं, भाग च।
निम्नलिखित में से किसी एक प्रपत्र को अपनी उत्तर पुस्तिका पर उतार कर भरिए। इत्थे आपां नूं 2 दित्ते हैं, तुहाडे लई मैं दोनों ही कीते हैं जी। ते आओ पहलां पहले वाला देखते हैं जी। पहले विच की है अपने को, मान लो आपका नाम विकास कुमार है, आपका भारतीय डाक के सेक्टर 17 चंडीगढ़ में एक बचत खाता है जिसका नंबर ये है, और आपको अपने इस खाते में से दिनांक दिन दिया हुआ है 24/8/2023 को 3200 रुपये निकलवाने हैं। इस अनुसार निम्नलिखित प्रपत्र भरिए। तो देखो इनको किस तरह भरना है जी। रुपए निकालने का फॉर्म ये हमें दिया हुआ है सारा। तो इत्थे आपां देखो फिल की करना है जी। पहला देखो अपने को, तो इस जगह पे देखो अपने को आ जाएगा जी, ये लिखा है बचत खाता नंबर। इत्थे बचत खाता नंबर आ जाएगा 2673455623। फिर दिनांक, दिनांक देखो इत्थे लिखा हुआ है, इत्थे तुसी लिख देनी है डेट 24/8/2023। फिर कृपया मुझे कितने पैसे हमने निकालने, रुपए अंकों में कितने हैं 3200 रुपये 3200। तो इसनों आपां लिखना है शब्दों में लिखना है 3200 रुपये। इसको शब्दों में लिखना है 3200 रुपये। इत्थे आपां इस तरह लिखना है रुपये। कि जमाकर्ता के हस्ताक्षर क्या है, जमाकर्ता का नाम है विकास। जमाकर्ता जिसने भी निकलवाने हैं उसका नाम इत्थे आ जाएगा, इत्थे आ जाएगा जी अपने को नाम है विकास कुमार, विकास कुमार। तो इसनों तुसीं नोट कर लेना है जी। तो आओ अगला देखते हैं। अगले विच आपां की भरना है। अगले विचों मान लो कि आपका नाम धनंजय पुरी है, आपका सुविधा बैंक शाखा होशियारपुर में एक बचत खाता है जिसका नंबर ये है। आपको अपने इस खाते में से 25,000 रुपये जमा करवाने हैं। इस अनुसार निम्नलिखित प्रपत्र भरिए। तो देखो पहले दिता होया है पत्र, आपां देखो की भरना है। इस दे विच पहला जमा खाता नंबर ये वाला लिखा है 33554234 जो कि किसका है अपने को के नाम से है। किसके नाम पे है, धनंजय पुरी के नाम पे। तो इत्थे लिख देना आपां धनंजय पुरी में रुपए कितने जमा करवाने हैं जिसने 25,000। इत्थे लिख देना आपां 25,000। तो इत्थे लिख देना है जी अपना शब्दों में, पहले अंकों में लिखा है फिर शब्दों में लिखना है 25,000 रुपए। और यहाँ जमाकर्ता के हस्ताक्षर आ जाएंगे जी धनंजय पुरी। तो होप है इसमें तुहानूं सारे जो क्वेश्चन करवाए हैं अच्छी तरह समझ लग गए होंगे। अगे अपने को थोड़ी सुंदर लिखाई दे हैं जी 5 नंबर। तो होप है तुहानूं सारे जो क्वेश्चन करवाए हैं अच्छी तरह समझ लग गए होंगे। जेकर वीडियो तुहानूं अच्छी लगी तो इसनूं लाइक और शेयर जरूर कर देना है जी। मेरे चैनल नूं सबसक्राइब कर देना है, सबसक्राइब करके बैल आइकन नूं जरूर प्रेस कर लेना है। तो बैल आइकन नूं प्रेस करके ऑल दे नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना है तां जो मेरी हरेक नवीं वीडियो की नोटिफिकेशन तुहानूं सब तो पहलां मिल सके। तो हुण मिलांगे आपां एक नवीं वीडियो विच एक नवीं जानकारी लैके। उदों तक लई धन्नवाद।